This is the first question. Okay, it says if x plus iota y is equal to 1 minus iota root 3 to the power 100, then find the value of x and find the value of y. Can you see this now? Can you listen to me and see this? My video is not coming. I hope you can manage without my video today. Yes, sir. We can't afford to waste more time, so I have started now. So this is a question and you have to find the value of x and y. So let me allow you to try for some time, then I will explain it, but I won't explain it at, at the first moment everything, but I will just tell you the hint. So first, anything you are thinking about, you can just uh, share it with me, that what are you thinking, and how will you approach this question. How can you find the value of x and y? Obviously you can't multiply 1 minus iota root 300 times. That is not practically possible. So you have to find some way out in order to find x and y. Are you getting the question? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so just try once, then we will discuss now. I should give you one hint, that try to change. This is hint number one. Okay, try to change 1 minus iota root 3 in polar form. You remember ना polar form, जिसके लिए तुम्हें इसका मॉड निकालना होगा और इसका आर्ग्यूमेंट निकालना होगा. तो पहला हिंट ये है कि ये जो 1 माइनस आयोटा रूट 3 है उसको पोलर फॉर्म में चेंज करो. If you have any thought in your mind that how you can do this, you can share with me. You have to try also and you have to share also, because what happens in classroom, as a teacher we used to see the copy of the students, but here I can't see your copy. So whatever you are doing, you can share with me that how you are approaching this, what are the different steps, where you are getting the modulus, what you are getting the argument.
सो हिंट नंबर 1 से तुम्हारे पास जो काम करना होगा वो ये करना होगा कि एक तो तुम इसका मॉडुलस निकालो। तो मॉडुलस क्या आएगा? मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z बोलते हो तो इसका मॉडुलस क्या आएगा? कोई बता सकता है मुझे? -2 to the power 99, आरुषि कह रही है। ओके, लेट अस चेक। सो इसका जो मॉडुलस आएगा वो आएगा √1 + 3, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4, दैट इज इक्वल टू 2। अच्छा, इसका आर्ग्यूमेंट क्या आएगा? सो सबसे पहले हम tan थीटा अगर निकालते हैं तो मॉड ऑफ y/x करेंगे तो √3 आएगा। इससे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? π/3, राइट, 60 डिग्री। अब ये किस क्वाड्रेंट में है? तो दिस, इसका जो x है वो पॉजिटिव है और y निगेटिव है, तो दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसका जो एंगल होगा, आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट विल बी -θ, दैट इज -π/3, राइट। इससे हमें पता चला कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 - i/√3 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ z, दैट इज 2 इंटू कॉस ऑफ -π/3 प्लस आयोटा साइन ऑफ -π/3, राइट। और माइनस साइन जो है वो कॉस के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है तो cos π/3 बन जाएगा, और साइन के बाहर निकल जाता है तो माइनस आयोटा साइन π/3 हो जाएगा। तो ये तो z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमारे पास पोलर फॉर्म में आ गया, दिस इज इन पोलर फॉर्म। तो पहला हिंट तो ये था कि चेंज इट इनटू पोलर फॉर्म एंड यू हैव फाइनली चेंज इट इनटू पोलर फॉर्म। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व? Yes, sir. Okay, now hint number 2 I am giving you, and by that hint you will proceed further and then I will explain. What will be hint number 2? Apply de Moivre's theorem. Apply de Moivre's theorem. de Moivre's theorem हम पिछली क्लास में ही पढ़ा है। I hope you have written this and you have also applied de Moivre's theorem. So next step what we will do कि hint number 1 मैं अभी रेस कर रहा हूँ। So in the next step जो 1 - i/√3 है
उसको हमने क्या लिखा, 2 टाइम्स ऑफ कॉस पाई बाई 3 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 3 ब्रैकेट क्लोज्ड, और इसकी पावर जो है वो 100 है. So this will be equal to 2 to the power 100 into cos pi by 3 minus iota sin pi by 3 to the power 100. अब इस पोलर फॉर्म में तुम्हें डी मॉर्विस थ्योरम लगाना है. तो डी मॉर्विस थ्योरम में क्या होता था कि जो पावर है वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है. सो व्हाट यू गेट हियर इज, आई होप यू आर फॉलोइंग दिस, जो पावर है वो जब एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगी तो cos 100 पाई बाई 3 हो जाएगा और माइनस आयोटा साइन 100 पाई बाई 3 हो जाएगा. राइट. अब यहां पर जो 100 पाई बाई 3 है उसको अगर हम ऐसे लिखें कि 2 पाई का कितना मल्टीपल हो रहा है, और उसके बाद ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6, 6 से डिवाइड करते हैं अगर 100 को, तो 6 1 टाइम्स इज 6, 4 0, 6 टाइम्स इज 36. तो 16 पाई बाई 3 प्लस 16 इंटू 2 पाई बाई 3, 2 पाई, सॉरी, 16 इंटू 2 पाई प्लस 4 पाई बाई 3. इसको ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? अगर एलसीएम लोगे फाइनली यही मिलेगा, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 3 इज 96, 96 प्लस 4 इज 100. अब इसके बाद जो 16 इंटू 2 पाई है तो दैट इज सेम एज 4 पाई बाई 3, मतलब हर एक 2 पाई के रोटेशन के बाद हम वहीं पे पहुंच जाते हैं. तो दिस इज 4 पाई बाई 3. तो हम क्या कह सकते हैं इसको, 2 टू द पावर 100 कॉस 4 पाई बाई 3 माइनस आयोटा साइन 4 पाई बाई 3, क्योंकि हम 2 पाई के जो एक रोटेशन था उसके बाद हम फिर से वही पहुंच जाते हैं. तो 16 2 Yeah. पाई का रोटेशन हुआ है. या समवन इज आस्किंग समथिंग? नो. तो 16 2 पाई का रोटेशन हुआ है प्लस 4 पाई बाई 3, तो हमारे पास एंड में 4 पाई बाई 3 ही है. अब इसको फर्दर अगर हम लिखते हैं तो दिस विल बी 2 टू द पावर 100 cos 4 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, cos 4 पाई बाई 3 मतलब 240 डिग्री. तो cos 240 डिग्री is cos 180 plus 60, which is actually minus cos 60. You will write it minus cos 60, which will be half. This is minus iota sin 240 degree. So sin 240 degree is sin 180 plus 60, which is again minus sin 60. Minus sin 60 means minus root 3 by 2. So this will become minus minus plus root 3 by 2. So this is what you are getting. Now इसको फाइनल अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बाहर का 2 टू द पावर 100 अंदर में, तो यू विल गेट माइनस 2 टू द पावर 99 प्लस आयोटा 2 टू द पावर 99 इंटू रूट 3. तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा. तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2 टू द पावर 99 एंड y इज इक्वल टू 2 to the power 99 into root 3. दिस शुड बी द आंसर. मैं भी एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, तुम भी इसको देखो, सारी कैलकुलेशन स्टेप्स कहीं पे कोई गलती तो नहीं है. ठीक है, यही आंसर है. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. थोड़ा सा आज वीडियो भी नहीं मेरा चल रहा है तो इससे थोड़ा सा मैनेज करने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन स्टिल आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग इट. Yes, sir. ओके, गुड.
लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। शुरू का आधा घंटा तो आज हम लोग कैसे ही चला गया। अच्छा, जब सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास के लिए तुम लोग को बोला जाता है तो कोई आता ही नहीं है। If Z1, Z2 and Z3, Z4 are two pairs of conjugate complex numbers, two pairs of conjugate complex numbers, then argument of Z1 by Z4 plus argument of Z2 by Z3 equals question mark। ध्यान से इसको करना है क्योंकि वी हैव टू बी कंसर्न अबाउट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, नॉट ओनली आर्ग्यूमेंट बट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, जो कि माइनस पाई और पाई के बीच में ही कोई वैल्यू होती है। What is given? Given is that Z1, Z2 are pair of conjugate complex numbers and Z3, Z4 are pair of conjugate complex numbers, which means that ki Z1 is equal to or Z1 conjugate is equal to Z2 and Z3 conjugate is equal to Z4. This is what is given to us. Okay. Now you have to do this. Try once, then we'll discuss.
सर जीरो, आरुषि इज सेइंग दैट इट इज जीरो। पिछला आंसर किसने दिया था? पिछला आंसर भी आरुषि ने दिया था, -2 to the power 99x का वैल्यू। बाकी लोगों का आंसर नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे काम चलेगा? Ayushi is also saying zero. Okay, so let us check. So basically हम यहाँ पर अगले स्टेप में अगर देखें तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाई z4 जो है उसको लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाई z4, यही रहने देते हैं। और आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 बाई z3 अगर लिखते हैं तो z2 को z1 का कॉन्जुगेट लिखा जा सकता है और z3 को z4 का कॉन्जुगेट लिखा जा सकता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, तो z3 को z4 का कॉन्जुगेट लिखो या z3 का कॉन्जुगेट z4 लिखो, दोनों बात बराबर है। दिस इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाई z4 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाई z4 का कॉन्जुगेट पूरा एक साथ आ जाएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट कि अलग अलग डिवीजन में अगर कॉन्जुगेट है उसको हम एक साथ ले सकते हैं। अब z1 बाई z4 को अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर z मानते हैं तो दिस इज एक्चुअली आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z का कॉन्जुगेट। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट और उसके कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट अगर हम ध्यान से देखें, इफ वी रिमेंबर, बेसिकली कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं, तो उसका कॉन्जुगेट जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज को कहते हैं। उसी तरीके से अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर को लूँ तो उसका थर्ड क्वाड्रेंट में जो इमेज बनता है वो एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज बनता है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि हम आर्ग्यूमेंट जो भी लेते हैं यहाँ पर z का, जो आर्ग्यूमेंट z कॉन्जुगेट होगा उसका जस्ट निगेटिव होगा। वैसे ही अगर तुम इस वाले की बात करो तो यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट हो रहा है वो आर्ग्यूमेंट जो भी होगा उसका निगेटिव आर्ग्यूमेंट उसके कॉन्जुगेट का होगा। तो मतलब एक्चुअली किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट जो होता है वो एक दूसरे का न्यूमेरिकली सेम होता है लेकिन साइन वाइज ऑपोजिट होता है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इफ थीटा देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट इज माइनस थीटा। ठीक है, तो दिस विल बिकम जीरो। सो योर आंसर्स आयुषी एंड आरुषि, इट वाज करेक्ट। एवरीवन हैज गॉट दिस पॉइंट ना? सर थर्ड स्टेप में आर्गुमेंट z प्लस आर्गुमेंट z कॉम्प्लीमेंट कैसे बनेगा ये बता दीजिए। z कॉन्जुगेट, कॉम्प्लीमेंट नहीं है, z कॉन्जुगेट है। सो z1 बाई z4 को हमने अज्यूम कर लिया कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो यहाँ पे z1 बाई z4 को z लिख दिया और यहाँ पे z1 बाई z4 को भी z लिख दिया, तो उसका कॉन्जुगेट यहाँ पे लिखा हुआ है तो वही आ जाएगा साथ साथ में। इज इट ओके? यस सर। फिर ये है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट होता है और उसके कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट जो होता है वो जस्ट एक्स एक्सिस के अबाउट सिंस मिरर इमेज होता है तो उसका ऑपोजिट साइन का होगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन ना? यस सर। Let me give you the next question. So the next question is, let me give you this question now.
find the number of solutions of z square plus 3z conjugate इक्वल टू 0। इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, मतलब z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, कितनी वैल्यूज ले सकता है। जस्ट ट्राई वंस। और इसके बाद एक क्वेश्चन और मैं लिख देता हूं। i टू द पावर i की जो वैल्यू होगी, i मतलब आयोटा रूट ओवर -1, वो इनमें से क्या हो सकती है। मैं ऑप्शन तुम्हें दे दे रहा हूं इस वाले क्वेश्चन में। e टू द पावर -π/2 हो सकती है, या फिर e टू द पावर π/2 हो सकती है, या फिर e टू द पावर पाई हो सकती है, या फिर e टू द पावर -π हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 में कैसे अप्रोच कर रहे हो बता सकते हो। लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, इसके बाद प्रोसीड करो। सर इसके बाद z की वैल्यू रख के तो सर आंसर नहीं आया। नहीं, अगर z रखते हैं x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स x प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0, तो x प्लस आई वाई का जो होल स्क्वायर होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर विच इज माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, प्लस आयोटा इंटू 2xy। और जो दूसरा वाला टर्म है उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ x माइनस आयोटा वाई, कॉन्जुगेट के लिए माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि रियल पार्ट को
एक साथ लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट को एक साथ, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x, ये रियल पार्ट हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, प्लस आयोटा 2xy माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो 0 का मतलब क्या हो गया, 0 प्लस आयोटा 0, तो जो रियल पार्ट है वो भी 0 है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी 0 है। तो इट मीन्स that real part is x square minus y square plus 3x. This is 0, as well as imaginary part 2xy minus 3y. This is also 0, because 0 means 0 plus iota 0. तो रियल पार्ट भी 0 है, इमेजिनरी पार्ट भी 0। उसके बाद यहाँ से अब दो इक्वेशन है, थोड़ा सा तुम ट्राई करो। एक ये इक्वेशन है इन एक्स एंड वाई, और एक ये इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। तो दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज मिलेंगी। इस वाले में अगर तुम y को कॉमन लेते हो तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इससे या तो y 0 हो सकता है या 2x माइनस 3 0 हो सकता है। तो या तो y 0 हो सकता है या फिर x इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। तो दो पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है। अब y इक्वल टू 0 के लिए जब हम ये वाला सॉल्व करेंगे, इसमें केस 1 हम ये ले रहे हैं कि y इज इक्वल टू 0, जो कि दूसरे इक्वेशन से निकल के आया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि y तो 0 हो गया, वो हट जाएगा। तो इससे x की एक वैल्यू 0 मिल सकती है और एक वैल्यू -3 मिल सकती है। ठीक है, तो केस 1 से जो कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हें मिल रहा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 0 प्लस आयोटा 0 एंड -3 प्लस आयोटा 0। अच्छा, केस 2 अगर लेते हैं, केस 2 क्या है, x इज इक्वल टू 3/2, और उसको पुट करते हैं फर्स्ट वाले में। फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? तो पहला वाला केस तो Yes, sir. निकाल दिया। पहला वाला केस यहाँ से आया था ना, y इक्वल टू 0। तो इस वाले से हमारे पास दो केस आ रहा है, एक y इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3/2। तो पहला वाला केस जब y इज इक्वल टू 0 हम ले लेते हैं, तो ये जो पहली इक्वेशन है इससे हमें x की दो वैल्यूज मिल रही है। मतलब y जब 0 है तो x 0 है, और y जब 0 है तो x -3 है। अब हम लोग केस 2 में आ रहे हैं, x इज इक्वल टू 3/2 ले रहे हैं। यहाँ नीचे में मैं लिख देता हूँ केस 2 को, x इज इक्वल टू 3/2, और इसको फर्स्ट इक्वेशन में फिर से मैं पुट करता हूँ। तो ये हो जाएगा 9/4 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। प्लस 3 नहीं, प्लस 3 इंटू 3 9/2 हो जाएगा, सॉरी 9/2। तो इससे तुम्हें जो वैल्यू मिलेगी वाई स्क्वायर की वो मिलेगी 27/4, जिससे y हमें मिलेगा ±3√3/2। ठीक है, तो विच मीन्स दैट केस 2 से हमें कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर मिल सकता है, एक हो सकता है 3√3/2 या फिर 3/2 के लिए -3√3/2। तो केस 2 में भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहे हैं। तो टोटल कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हमारे पास आ रहे हैं वो 4 आ रहे हैं। सो हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर? देयर आर 4 सॉल्यूशंस। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir.
Let us come to question number 4 now. Okay, देवांश ने मैसेज किया था, there are 4 solutions. Someone has given an answer. Arushi is saying a e to the power minus pi by 2. I think this is correct, but still I'm not confirmed. I will first solve it. So I to the power I, तो मतलब रूट ओवर -1 टू द पावर रूट। तो सबसे पहले क्या करो ना कि ये जो I बेस में है, पावर वाले I को तो वही रहने दो, जो बेस में I है उसको तुम पोलर फॉर्म में अगर चेंज करते हो उसका मॉडुलस तो 1 होगा एंड आर्ग्यूमेंट उसका π/2 होगा। यू कैन राइट इट एज cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, क्योंकि cos π/2 0 हो जाएगा और साइन π/2 1 हो जाएगा, तो 0 प्लस आयोटा इंटू 1 फाइनली क्या होगा, आयोटा ही तो होगा ना। तो आयोटा को अगर मैं पोलर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो उसको क्या लिख सकता हूँ, cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। इज दिस clear to every one of you? I want response from everyone. थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। ओके, फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो बेसिकली आयोटा जो है इसका मॉडुलस क्या होता है, 1 होगा, रूट ओवर 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, विच विल बी 1। आयोटा का क्या मतलब होता है, आयोटा का मतलब होता है 0 प्लस 1 इंटू आयोटा। तो उसका जब मॉड निकालेंगे तो 1 आएगा, और जब आर्ग्यूमेंट निकालेंगे आयोटा का, तो आयोटा एक ऐसा नंबर है जो कि इमेजिनरी वाई एक्सिस पे है, जो वाई एक्सिस है, तो उसका जो आर्ग्यूमेंट होता है वो π/2 होता है, ठीक है, 90 डिग्री। तो दिस इज π/2। अगर माइनस आयोटा होता तो नीचे होता तो माइनस π/2 होता। तो हम फाइनली आयोटा को क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस इज 1, तो वो लिखे या ना लिखे 1 तो रहता ही है छुपा हुआ, cos ऑफ π/2 प्लस आयोटा साइन ऑफ π/2। तो cos ऑफ π/2 प्लस आयोटा ऑफ साइन π/2 इज आई एक्चुअली इन पोलर फॉर्म। ये बात समझ में आ गई? देवांश तुमने पूछा था ना, शायद किसने पूछा? यस सर। ओके, तो अब इसके बाद मैंने एक फॉर्म और बताया था, दिस इज द पोलर फॉर्म, देन अनदर फॉर्म इज कॉल्ड यूलर फॉर्म। तो इसको तुम e टू द पावर आयोटा π/2 लिख सकते हो।
cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 को e टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं यूलर फॉर्म में, e टू द पावर आई थीटा, राइट। तो ये हो जाएगा e टू द पावर आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर इंटू पाई बाई 2 विच इज e टू द पावर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, so e to the power minus pi by 2. So your answer is A. Let us come to the next question now. Question number 5. Find the values of Z satisfying both mod of Z is equal to 4 and mod of Z is equal to mod of Z minus 6. तो इसको करने के लिए थोड़ा सा तुम्हें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका समझना पड़ेगा, जो कि अभी मैंने ज़्यादा नहीं बताया है, बस कम कम बताया मैंने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, लेकिन उसको समझ के करना पड़ेगा। तो एक बार एफर्ट करो, फिर मैं बताता हूँ। क्योंकि एक्चुअली कोनिक सेक्शन जो चैप्टर है ना, वो जब हम लोग कर लेंगे तब जो इसका इंटरप्रिटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर में, उसको समझ पाएंगे। इसलिए अभी मैंने ज़्यादा ज्योमेट्रिकल पार्ट नहीं बताया है, क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है कि तुमने जो रियल कोनिक सेक्शन है उसके बारे में पढ़ा हो। तो अभी हम लोगों ने जो थोड़ा बहुत पढ़ा है उसी बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेट मी गिव यू 2 हिंट। हिंट नंबर 1 ये है कि मॉड z इज इक्वल टू सम कांस्टेंट a अगर होता है तो इसका ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है। मॉड ऑफ z का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? नहीं, मॉड ऑफ z का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो अगर वो किसी कांस्टेंट a के बराबर है तो इसका मतलब है कि ओरिजिन से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिस्टेंस है वो फिक्स है a, विच विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ सर्कल। क्योंकि सर्कल का जो सेंटर होगा वो ओरिजिन होगा और जो रेडियस होगा वो a होगा। तो इस सर्कल पे z कहीं पर भी हो सकता है। z can be anywhere on this circle whose radius is a and whose center is origin.
तो इसका मतलब होता है कि सेंटर ऑफ द सर्कल इज ओरिजिन एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज ए। तो ये एक सर्कल देगा और z जो होगा, z लाइज ऑन द सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल। ये बात समझ में आ रही है? यस? नहीं? कुछ तो बोलो, हाँ या ना। यस सर। ओके गुड। सो एक तो ये पता होना चाहिए। दूसरा हिंट जो है, हिंट नंबर 2, वो ये है कि अगर हमारे पास z माइनस जेड वन का मॉड इज इक्वल टू z माइनस जेड टू का मॉड दिया होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर और z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको ज्वाइन करने वाला एक लाइन सेगमेंट है। तो ये जो z है वो कहाँ कहाँ पर लाई कर सकता है? तो z कैन लाई एनीवेयर ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ z1 z2। क्योंकि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसकी जो z1 से दूरी होगी, विच इज कॉल्ड मॉड ऑफ z माइनस z1, और जो z2 से दूरी होगी, विच इज कॉल्ड मॉड ऑफ z माइनस z2, ये दोनों बराबर होगी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है, डेफिनेशन भी होता है कि द पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ द पॉइंट्स। तो z1 और z2 से दोनों की दूरी बराबर है। तो ये मॉड z इज इक्वल टू a का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, और ये मॉड ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z2 का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। अब दोनों इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो दोनों को सेटिस्फाई करने वाला कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, या कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है? थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, फिर मैं बताता हूँ। Try solving this question. I'm coming in 2 minutes. Okay.
Yes, anyone